the Transfer of Property Act 1882. Our topic of discussion is the whole act. We'll go by session by session. First of all, we need to know what are the object, why we are discussing about this Transfer of Property Act. What is the need? We also studied about the contract between two parties, agreement, what are valid agreement, void, voidable. Even in the Indian Succession Act 2, the Transfer of Property by Will, Succession Act, we already learned. So now that are the concept, but how to transfer the property? Contract is for transfer of property or transfer of anything, but how to transfer? That is an important concept, which will be teach in this Transfer of Property Act 1882. We'll start with the introduction. This act come into force on 1st of July 1882. The act applies to the whole of India. Now, don't use the term except Jammu and Kashmir. In every act, not in transfer of property, in all act. Now, all the whole acts which are applicable in India, that is also same applicable to state of Jammu and Kashmir. Okay, so from now onwards, don't use this restriction, though it is written on your books. Okay, the preamble of the act. We know that the preamble of any act is the introductory and the main part of the act. Like, what is the objectives of the act? What are the aim of the act? In simple word, why this act is introduced or enacted by the parliament, which clearly shown, indicated in preamble of the act. Okay, so the preamble of the act lays down that it is an act to define and amend the law relating to the transfer of the property by the act of the party. That is not by the operation of the law. दो चीजें आपने लॉ में हमेशा देखी हैं. एक होता है by the operation of the law. कुछ चीजें ऑपरेशन ऑफ द लॉ के थ्रू अपने आप बदल जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको एक्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आईपीसी की बात लें, आप किसी का मर्डर करें तो पहले आपको एक्ट करना पड़ेगा. इट्स एक्ट ऑफ दैट ऑफेंडर और एक्यूज. ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप चलने लगेगा आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ योर एक्ट. सेम थिंग अप्लाइड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू. This whole act is depend on the act of the party. Means operation of the law mein, if you are purchasing some flat from the builder, you have to pay the stamp duty to the government. Paying stamp duty to the government, it's operation of law. But क्या गवर्नमेंट आपको ऐसा बोल सकती है कि इतनी स्टैम्प ड्यूटी भर दो अगर आपको फ्लैट नहीं भी खरीदना है तो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो ऑपरेशन ऑफ द लॉ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एक्ट ऑफ द पार्टीज पे. ओके, so this is your act. This is the thing which applied by the act of the parties, not by the application of law. Okay, what are the objectives? The objectives of the Transfer of the Property Act is that to bring the rules which regulates the transmission of the property between the living person into harmony with the rules affecting its devolution upon death, and thus
the furnish the complement to work commence in framing the law of the intestate and testamentary succession. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव था कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो आपने वो प्रॉपर्टी एंजॉय की, बट आफ्टर योर डेथ टू, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज अर्न्ड बाय योर एक्ट, योर हार्ड अर्न्ड मनी, राइट? सो इट्स योर राइट to devote your property after your death too. ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे चली जाएगी अपने आप, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोविजन दिया गया है। इफ द पर्सन इज डाइंग इंटेस्टेट, डाइंग इंटेस्टेट मीन्स इफ द पर्सन इज डाइज विदाउट मेकिंग एनी विल, दैट इज नोन एज डाइंग इंटेस्टेट, और the person who makes the will, so testamentary succession, in which he described his will and wish for the devolution of the property, कि मेरे मरने के बाद ये हिस्सा यहाँ दिया जाए, जैसे सक्सेशन एक्ट में आपने देखा है, ये इसको दिया जाए, वो उसको दिया जाए, इतना पैसा मेरे कुत्ते को दिया जाए, ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को दी जाए, whatever the nature of the transaction. ये सारे राइट्स एक पर्सन के सिक्योर करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका है टू कंप्लीट द कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ सो फार एज इट्स रिलेट्स टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये याद रखिएगा, इट रिलेट्स टू ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। सर एक क्वेश्चन है सर। So after this, for this, the question is, what is the need of succession certificate? See, any property which is purchased by you or which is transferred on your name by the testamentary succession, it should not be left without any owner. कोई भी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का ये रूल है कि उसका एंजॉय किए बगैर आप छोड़ नहीं सकते, वो प्रॉपर्टी को ऐसे ही पड़ा रहने नहीं दे सकते, उसके ऊपर एक टाइटल होना जरूरी है। ओके, तो ऐसे में वो आपको सर्टिफिकेट बनाना जरूरी होता है, बिकॉज कोर्ट को नहीं पता कि आपके पर्सनल में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। The biggest example, अगर आपने उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम को देखा होगा, उनका भी ऐसे ही हुआ था। एक इलेजिटिमेट चाइल्ड बाहर आता है और बोलता है आई एम द हेयर ऑफ दैट पर्सन, राइट? सो ऐसे कंडीशन में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब आती है बात कि वो प्रॉपर्टी डिवोल्व किसके पास होती है। वो प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है जो भी उसके लीगल हेयर्स जिंदा हैं उनके पास। ओके, हस्बैंड वाइफ हैं, या आप उनके बेटे हैं, या आप उनकी बहू हैं, या आप उनके रिश्तेदार हैं, ये कोर्ट को नहीं पता होता, ये आप जानते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। आपने कोर्ट के सामने हो सकता है ये छुपा लिया हो कि आपके पिताजी के 4 बेटे थे। इसके लिए ऐसे कंडीशन में जब आदमी, अगर इफ द पर्सन इज डाइंग इंटेस्टेट, ऐसे में यू हैव टू गेट अप्लाई फॉर द सक्सेशन सर्टिफिकेट, दैट इज हेयरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कोर्ट, दैट इज हैविंग द लोकल jurisdiction. Okay, to devolve the property on another person or the remaining one. Okay, the act is limited to the transfer of property by act of the party. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, that is ये आपको ऑपरेशन ऑफ लॉ से अलग है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में मैंने आपको बताया था, if the person is dying intestate, ठीक है, तो ऐसे में ऑपरेशन ऑफ लॉ लगेगा, जिसमें वो अपने आप वो चीजें आ जाएंगी। मींस आपने सक्सेशन एक्ट में देखा होगा कि बेटे के बाद
उसके बेटे को मिल गई, उस आदमी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होती है, उसके जितने भी सर्वाइवर्स हैं, राइट। इसमें उसको कोई भी अगर उसने एक्ट नहीं भी किया तो ऑपरेशन ऑफ लॉ है उसका। बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये ज्यादा फोकस करता है कि आप ये जो भी कर रहे हैं इट्स एक्ट ऑफ द पार्टीज, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, then and only then this act is effective. Clear? तो ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या होता है? डाइंग इंटरस्टेट है, इंसॉल्वेंसी है, फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी है, सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है। डिक्री मीन्स इट्स ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, फाइनल ऑर्डर। आपने किसी से कुछ पैसों की चीटिंग की, उसके बाद अगर आप पे नहीं कर पाए तो कोर्ट आपसे वो पैसे लेता है और उसको बोलते हैं, जब आप वो पैसे निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर पास बाय द डिक्री। क्लियर? सो ये आपका पूरा एक्ट इन्वॉल्व करता है द ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टी, नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ। Okay, these are the introduction. After the introduction, come to the part definitions. This is the one of the vital part. Even definitions are the vital part of every act. Okay, so if we start with the transfer of the property, so first we have to learn, we have to go through with the main thing that what is the property. And it is a very surprising for you all that the Transfer of Property Act 1882 does not define the term property. Reason, the definition of the property is having a wider sense, wider area. That's why the property is a legal term to denote every kind of interest or right which has an economic content. Okay, when a property is transferred, the right along with the property are also transferred. The property is divided into movable and immovable. देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये चीज होती है जब आप कोई चीज ऑन करते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड है, प्लॉट है, फ्लैट है, इमूवेबल में मान ले तो कार है, गोल्ड है, ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज में आती है। क्यों करते हैं आप ये? उसकी मॉनेटरी वैल्यू है तभी करते हैं ना। हर चीज की एक मॉनेटरी वैल्यू है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। इवन बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि ये जो गवर्नमेंट के ब्लॉक्स होते हैं जो फुटपाथ पे लगते हैं, जो फुटपाथ से लगी हुई शॉप्स होती हैं, वहां के लोग उसको उठा के अपने फुटपाथ में यूज करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ थेफ्ट। यू आर नॉट सपोज टू टेक दैट ब्लॉक्स इन योर प्रॉपर्टी, उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू है। सो एनीथिंग विच आर हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट इज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अब एक चीज होती है जैसे इफ द पर्सन, उसने आपको अपना फ्लैट सेल किया किसी कॉलोनी में, किसी एक बड़े, जैसे आप मान लीजिए लोढ़ा में। अब इतने जो आपके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या ऐसे होती हैं, तो वहां पे फ्लैट के साथ साथ आपको पार्किंग स्पेस भी मिलता है, वो आपका प्रॉपर्टी राइट होता है। तो ऐसे में जब आप फ्लैट बेचते हैं तो वो पार्किंग भी आपको ऑटोमेटिकली मिलती है। ओके, आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैंने फ्लैट बेचा था, गाड़ी तो मैं यहीं खड़ी करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो उसके साथ साथ उसके राइट भी अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके लिए कोई भी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था
दो तरह की कंसेंट होती है, एक एक्सप्रेस एक इम्प्लाइड। एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने पढ़ा होगा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ओके, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी इम्प्लाइड होता है। वंस यू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी, the whole right, all the right related to that property is automatically transferred on the new person who are purchasing this property. Okay, property is divided into two categories, that is movable and immovable. Immovable properties are those property which are permanently fastened to the earth, standing crops, trees. These all are the immovable property. स्टैंडिंग क्रॉप्स में भी आपको बाइफर्केशन आ जाता है, जब तक वो उस फील्ड में है, उसको कट नहीं किया आपने, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वंस यू कट विद द लॉफुल परमिशन ऑफ द ओनर एंड यू आर ट्रांसपोर्टिंग दैट क्रॉप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, then it comes under the immovable property. The standing trees, the tree of mango, tree is immovable property. The mangoes is immovable property unless and until that mango is separated from the tree. Clear? So these are the definition of immovable property. Movable property we all knows, which can be moved from one place to another. Or in law sense, very simple definition, all the properties are immovable property which are not described under the movable property. That's it. Okay. The second definition, that immovable property, transfer of property does not define the term immovable property. Very common, because if transfer of property not describe the term of property, then also not describe the term of immovable property, because as I said earlier that it is also having a wider sense. So एक फ्रेमवर्क में इतने बड़े फ्रेम को बैठाना इम्पॉसिबल है. It's like same the writ petition under article 32, इसका jurisdiction बहुत कम है क्योंकि वो 5 पे ही चलती है, habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari or prohibition. However, the writ jurisdiction of High Court under Article 226 is having a wider jurisdiction. Reason, except this 5, any kind of your grievances will heard by the Honorable High Court. Only one condition, there should not be any alternate remedies are present. आई बात समझ में? सेम चीज यहाँ पर है, इसीलिए जब भी कोई डेफिनेशन वाइडर सेंस में होता है तो उसको एक फ्रेमवर्क में बैठाना इम्पॉसिबल होता है. और एक फ्रेमवर्क में बैठाते बैठाते अगर हम सारे डेफिनेशन को इंक्लूड करेंगे तो आपका 40 पेज खाली डेफिनेशन नहीं आ जाएगा, सिर्फ एक डेफिनेशन. इसी वजह से आपको एक आइडियल डेफिनेशन दे दिया जाता है with the clause that it is having a wider sense. Okay, so the transfer of property does not define the term immovable property, but it only speaks that the immovable property does not include standing timbers, growing crops or grass. सिर्फ इतना इन्होंने एग्जाम कर दिया. टिम्बर वुड के बारे में आप जानते होंगे, जिससे आपके फर्नीचर्स बनते हैं, तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता, दो इट इज स्टैंडिंग ऑन द फील्ड. ग्रोविंग क्रॉप्स है, स्टैंडिंग क्रॉप्स और ग्रोविंग क्रॉप्स में भी फर्क होता है. जो अभी पक रहे हैं उसको अगर आपने उखाड़ दिया, उसको आपने कोई डैमेज किया, तो उसका क्लेम इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा. और ग्रास ऑन द फील्ड. Okay, as the act do not give an exhaustive definition, it only takes what is not included in immovable property. It becomes necessary to explore the other act which define the term immovable property.
मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां पे भी आपको जो भी डेफिनेशन नहीं मिलते, इन सबका डेफिनेशन आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में मिल जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग द एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897. जो भी आपको डेफिनेशंस नहीं मिल रहे हैं ड्यूरिंग योर कोर्ट प्रैक्टिस टू, कई बार आप फंस जाते हैं. अब वो डेफिनेशंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप एक्ट लेके भी खड़े हैं तो भी वो डेफिनेशन आपको नहीं मिलता. सिंपल refer the general clauses act. The general clauses act covering the most of the definitions. So it is one of the important part of your law field as well as for your law student as well as for your practice. Okay, again I am repeating the name of the act, General Clauses Act 1897. Okay. So, as per the General Clauses Act, Section 3, Subsection 25, the immovable property shall include the land, benefit arise of the land, thing attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. Means, कोई भी एक लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है. उसके साथ में कोई चीज परमानेंटली फास्टन है, लाइक आपने लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाई तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बनती है. उस बिल्डिंग के अंदर आपके सीलिंग्स हैं, आपके आई बीम्स होते हैं, आपके रॉड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें फिक्स होते हैं, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. आप ये नहीं बोलते सर वो आई बीम तो हम बाहर से लेके आए थे तब तो मूवेबल थी. इसीलिए डेफिनेशन आपको प्रॉपर ना देके वाइडर सेंस में दिया है, बिकॉज the ratio, the term, the function of the property is changed from time to time. It depends on its functions. कोई भी चीज एक बार मूवेबल है, जब आप उसको उसका फंक्शन चेंज कर देते हैं तो इमूवेबल बन जाती है. आफ्टर सम टाइम आप उसको वापस मूवेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए कोई भी आपके सब्जेक्ट्स को प्रॉपर वाइडर सेंस में नहीं लिया गया. ओके. रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी. इट शैल इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंसेस. हेरिडेटरी अलाउंसेस क्या होता है? सपोज इफ यू आर अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, you are getting a rent. If you died after your death, your son or who is your legal heir are liable for same. Okay, that is the hereditary thing. So the registration act, hereditary allowance है, right to way है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपको जाने का रास्ता भी चाहिए. ओके, लाइट्स है, टेरिटरीज है, फेरीज है, फिशरीज है, एनी अदर बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ अ लैंड और थिंग to the earth permanently fastened, anything which is attached to the earth but not standing timbers, growing crops and grass. ये तीन टर्म्स हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोविंग क्रॉप्स और ग्रास. ये तीनों ही आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती, दो इट इज अ परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ. ओके. राइट टू लाइट इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट. इट्स योर प्रॉपर्टी. आपके घर के सामने कोई लंबी सी बिल्डिंग बना दे चारों तरफ से तो इट इज नॉट अलाउड. आपको आपके राइट नहीं पता होते. ओके. सो दीज आर योर definitions of immovable properties. Okay. उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट. ये इंस्ट्रूमेंट आपका वो गाने बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं. इंस्ट्रूमेंट इज द डॉक्यूमेंट जो आप साइन करते हैं. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज who are having a legal foots. ठीक है वो. So the instrument, section 3 of the transfer of the property defined
Instrument means a non-testamentary instrument. Non-testamentary instrument means if I am making a will और मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद इसको मिलेगी, मेरे मरने के बाद उसको मिलेगी, ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिया है बिकॉज इट्स अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एज वी सीन अर्लियर। दिस act is focused on the act of the parties, not by the operation of the law. Testamentary succession comes under the operation of the law. If the property is given by my father and if the same property is not, my father is not transferring that property in my name, then too by the operation of the law I am having a vested interest on that property. Okay, the person is having a full right on his grandfather's property, not in his father's property. तो ये ऑपरेशन ऑफ द लॉ, इसको आप एक्ट ऑफ द लॉ में बदल नहीं सकते। ओके, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट में है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट डील्स विद द testamentary instrument, that is will, etc. That is why instrument does not cover testamentary instrument under this act. will वगैरह को, जो भी आपकी will बनती है इंडियन सक्सेशन एक्ट में आपने देखा होगा, ये सारा का सारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन है एज पर द सेक्शन 3, दिस इंस्ट्रूमेंट कंटेन the non-testamentary instrument. All the non-testamentary instruments are comes and covered under a definition of transfer of property. Okay. So our next definition is attested. Attestation क्या होता है? Attestation, attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have been attested by 2 or more witness. कोई भी आप डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप एग्जीक्यूट करते हैं, any instrument which is entered by the parties, it should be contain the signature, the execution of 2 witnesses. Okay. ये विल के लिए भी आपके एप्लीकेबल है, भले वो विल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यस, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द अनबॉर्न चाइल्ड, दैट इज नोन एज वेस्टेड इंटरेस्ट। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी टेस्टामेंट्री सक्सेशन में, इंडियन सक्सेशन एक्ट में। ओके, इसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी in the name of unborn child. Once it comes under his mother's womb, after 6 weeks, फोर्टिस मैच्योर हो जाता है और उसके नाम पर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अटेस्टेशन, द प्रॉपर्टी, any instrument must be executed before 2 witnesses, और अगर 2 नहीं है तो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। इसके लिए कंडीशन है each of whom seen the executant sign or affix his mark to the instrument. कई बार जो आपका एग्जीक्यूटर होता है, एग्जीक्यूटेंट होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो साइन नहीं करता, वो अपने मार्क देता है, थंब इम्प्रेशन। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो फिर उसके अभी आपका क्वेश्चन है टू whom the property of widow is transferred when there are no legal heirs, then it is automatically devolved on the government. If the property is not having any heirs, there are no any successor, then government will acquire that property, because it's a general rule that
no property should not remain unused for 20 years. अपने आप गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी unused property. Okay, so comes again the attested. So attested by 2 or more witnesses, each of whom has seen the executant sign or affix his mark. अगर वो uneducated है तो वो अपने मार्क दे सकता है, और वो मार्क देते हुए उस आदमी को देखना चाहिए जो विटनेस है. Has seen some other person sign in the instrument in presence or by the direction of the executant. Means कि जो witnesses भी होते हैं, ये witnesses भी executant जो साइन कर रहा है उसके will and wish पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्ट नहीं. कोई भी आके उसमें विटनेस नहीं बनता, एग्जीक्यूटेंट की परमिशन होती है, उसके बाद ही ये अलाउ होता है. थर्ड, has received from the executant a personal acknowledgement of his signature, mark or signature of other person. Suppose the witness has failed to see whether the executant signed or not, but if the executant assured that witness that I have signed on this document, then too it's valid. For example, Mr. A को लगा कि वो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे मिस्टर बी के नाम पे इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस सी एंड डी. सपोज उनके आने में लेट हो रही है और मिस्टर ए को लग रहा है कि बस वो मरने वाले हैं, उन्होंने साइन किया लेकिन वो मरे नहीं. मिस्टर सी और मिस्टर डी बाद में आए और उनको मिस्टर ए बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें मैंने ही साइन किया, देन टू इट्स वैलिड. वो 2 विटनेस ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं मेरे सामने फिर से साइन करो. नो, इफ द एग्जीक्यूटेंट हिमसेल्फ डिपोजेस दैट आई हैव साइंड ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, देन टू इट्स वैलिड. नो नीड ऑफ एनी फर्दर सिग्नेचर ऑन दैट डॉक्यूमेंट. Okay. Fourth one, each of whom has signed the instrument in presence of executant. Means witness को भी उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना है एग्जीक्यूटेंट के सामने. But it shall not be necessary that more than one of such witness shall have present at that same time. एक के लिए कंपलसरी है, 2 के लिए नहीं. 2 विटनेसेस के साइन चाहिए, बट एग्जीक्यूटिंग के सामने जब ये सारी प्रोसीडिंग चल रही है इंस्ट्रूमेंट पे, एक विटनेस का होना जरूरी. कई बार होता है कि 2 विटनेस नहीं आ पा रहे, नहीं अवेलेबल है. एक जनरल प्रैक्टिस मानी जाती है कि 2 विटनेस होना जरूरी है. अब जब आईपीसी और सीआरपीसी के प्रोसीजर पढ़ेंगे, इवन पंचनामा रिक्वायर 2 विटनेसेस, बट एक कंपलसरी है. कई बार होता है कि 2 नहीं मिल पाते, तो एक कंपलसरी. वही चीज यहाँ पर, नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी. अटेस्टेशन के लिए कोई भी एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर नहीं है. साइन कर दे, अपना नाम लिख दे, थंब इम्प्रेशन दे दे. इवन कुछ लोग अपने मार्क यूज करते हैं. आप पुराने टाइम पे देखेंगे, अब तो वो बंद हो गया है. पुराने टाइम पे इवन अम्ब्रेलास पे भी बड़े लोग अपने मार्क बना देते थे. उस मार्क से समझ में आ जाता था कि ये उसका है. फॉर एग्जाम्पल अभी आप प्रेजेंट टाइम पे देख लें तो पार्टीज के जो सिंबल्स होते हैं, वो मार्क देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये किसका है. ओके, तो ये मार्क भी चलते हैं, साइन भी चलती है, गिविंग योर थंब इम्प्रेशन ये भी चलता है. दिस ऑल आर कम्स अंडर द अटेस्टेशन. देयर इज नो एनी that particular form is described by the Transfer of Property Act. Okay, to attest means to sign and witness any fact. In transfer of property, attesting means that person has signed the document by the way of testamentary fact that he saw it. Means ये एक तरीके का ऑथेंटिकेशन देता है जो बताता है कि भैया मेरे सामने ये प्रॉपर्टी को execute किया गया है. That executant has executed this instrument before me.
It's a kind of a surety given by that person before any person of a law. If that instrument is challenged, any person authorized by the law, because the registrar is not present at the time of that execution, so he relied on the statement of that witnesses. Clear? So the party who's seen the document executed is in fact a witness to it. If he subscribes as a witness, he becomes an attesting witness. अगर उसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है कि भाई ये बंदा है, इसके सामने मैं ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर रहा हूँ, तो वो बंदा कहलाता है attesting witness. और execution means to put your mark, signature right on the instrument. अब signature के बदले अब आप execution of instrument use करेंगे. I have signed that document, that agreement, that contract. It's a layman language. But I have executed that instrument. It's your proper legal language. Okay? उसके बाद आते हैं registered. According to the Transfer of Property Act, the registered means registered in any part of the territories to which this act extends under the law for the time being in a force, regulating the registration of a document. Registration means it's the execution of the property. Any will जब आप बनाते हैं, any property जब आप बनाते हैं, वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होना जरूरी है और वो उस वहां तक अप्लाइड है जहां तक ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाइड टू होल ऑफ द इंडिया टेरिटरी. सो रजिस्टर्ड ऑल्सो कवर्ड दैट इंस्ट्रूमेंट शुड बी रजिस्टर्ड बिफोर द any part, any officer which comes under the territory of India. रजिस्ट्रेशन का आपको एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ये आपको अलग ही दिया हुआ है. The definition of registered as per the registration act means the description of a property must be suitably given so that it becomes easy to identify the property. आप जब भी किसी को बुलाते हैं अपने घर पे तो आप एक लैंडमार्क एरिया बता देते हैं. क्यों बताते हैं? ताकि वो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके. आप अपने घर की बिल्डिंग में आप अपना फ्लैट नंबर, आप एक प्रॉपर एरिया प्लस अपने डोर के बाहर आप एक नेम प्लेट चिपकाते हैं. क्यों चिपकाते हैं? ताकि एक आइडेंटिफिकेशन हो सके कि भैया ये प्रॉपर्टी इस बंदे से बिलोंग करती है. हाउ विल वी डिस्क्राइब, हाउ विल वी आइडेंटिफाई? दैट्स व्हाई रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी. बिकॉज एक प्रॉपर्टी को 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन होता है तो it should be done before the registrar, which is the government authority, which is the part of the 3 pillars of the constitution, that is executives, works under the legislation. Once you registered the property, it comes on the record of the government. So in that scenario, no one can acquire your property. If he acquire, then apply to the government, get the record from the government, show to that person or to the court, the justice is yours. That's why the registration is required. Okay? Registration must be done in an area in which the property is situated. It's but obvious it is known as the territorial jurisdiction. आप जहाँ रहते हैं उसी एरिया के आपको सब रजिस्ट्रार के पास अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना पड़ता है. आप रहते हैं मीरा रोड में, आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने कल्याण जाएंगे तो नॉट अलाउड, बिकॉज आपका टोटल ये जो 7/12 से लेके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का जो जितना भी रजिस्टर है, ऑनलाइन प्रोसेस है, ये सारा का सारा आपका सब रजिस्ट्रार पे होगा जो आपके डिविजनल ऑफिस में होगा. तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन डिसाइड होता है. जैसे कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन डिसाइडेड होता है, वैसे ही इसका भी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन डिसाइडेड होता है. ओके,
अब उसके बाद हम आते हैं, द रजिस्ट्रेशन मस्ट बी बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। जिसके पास पावर है सिर्फ वही रजिस्टर कर सकता है, आपका नगर सेवक रजिस्टर नहीं कर देगा। इवन आपका प्राइम मिनिस्टर आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं कर सकते, दो ही इज हैविंग अ फुल अथॉरिटी। देन टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी आपके पास सब रजिस्ट्रार ही है, जिसके सामने आप ये सारी चीजें करते हैं। ओके, एंड द फोर्थ वन, द डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर पर्सन। जिससे रिलेटेड वो प्रॉपर्टी है वही उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को मूव करेगा। रीजन क्या है इसका? बिकॉज कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ना करा ले एक्सेप्ट पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी में उस ओनर का होना जरूरी नहीं है, वो जिसको भी अपॉइंट करता है वो उनके बिहाफ में सारी चीजें कर सकता है एक्सेप्ट पावर ऑफ अटॉर्नी। बाकी सब में आपको उस ओनर की जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट उस ओनर के थ्रू ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। रीजन कि उस बंदे का कोई भी राइट आप हार्म ना कर सके। ओके, so for the purpose of a registration of a document, it is mandatory to fulfill all the above provisions of a registration act. ये चार के चारों आपको फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं एग्जीक्यूट विदाउट फॉलोइंग any of these conditions, then your document is not properly registered. ये चारों नॉर्म्स आपको पूरे करने हैं। ओके, इन चार नॉर्म्स के बाद ही आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती है। तो ये चारों नॉर्म्स को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द फोर्स। फर्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी must be suitably given so that it becomes easy to identify the property. Second, the registration must be done in an area in which property is situated. Third, the registration must be by the prescribed authority. And the fourth, the documents for the registration must be presented by the proper person. So these are the four conditions which are given or prescribed under the Registration Act. And after following, after complying all these four, your property is duly registered. If you are failed to comply any one of these provisions, then your property should not considered as duly registered. Am I clear? The next definition is attached to the earth. अभी आपने सुना definition में that anything which is permanently attached to the earth. So what it means, attached to the earth? Attached to the earth means rooted in the earth, as in the case of trees and shrubs. Embedded in the earth, as in case of walls or buildings. Attached to what is embedded for the permanently beneficial enjoyment of to which it is attached. It's a very simple definition. If the trees are rooted, then it is attached to the earth. The wall is built on the earth, then also it is attached to the earth. On that wall, you put another slab. The slab is also covered under the attached to the earth. It's like a earthing. आप बिजली का तार छू लीजिए, लगा दीजिए और दूसरा अपने हाथ में ले लीजिए, तो आपको वो प्लग छूने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप अटैच हो जाएंगे। वही अटैचमेंट यहाँ पर। Anything which is attached to the earth, if you are attaching something to that wall, then also it comes under the attached to the earth. Okay. Another definition is actionable claim. Actionable claim means, it is an important one. Pay attention. Actionable claim means a claim to any debt other than the debt secured by the mortgage of the immovable property or by the hypothecation or pledge of the movable property. Mortgage. If you borrowed some money from
some financial institute, for that loan, you have to put your property as a security for the repayment of that loan. That security, if comes under a mortgage, that if you are failed, then the financial institute will sell that property. That is known as mortgage. Hypothecation of the immovable property of pledge. आपने अक्सर ये छोटे छोटे ऑटो रिक्शा में देखा होगा, सहकार्य बाय कैनरा बैंक, सहकार्य बाय समथिंग समथिंग बैंक. वो यही होता है कि दैट ऑटो रिक्शा borrowed by that owner with the help of that bank or financial institution. Okay, to any beneficial interest in a movable property not in a possession either actual or constructive of the claimant. Means भले ही गाड़ी, आप जैसे लोन पे भी आप गाड़ी चलाते हैं, लोन पे आपने कोई व्हीकल खरीदा तो आपकी आरसी बुक पर उस बैंक का नाम आ जाता है. आपके जो रिकॉर्ड होते हैं व्हीकल के उसमें लिखा रहता है. आप उस लोन को पे करेंगे, एक एनओसी सर्टिफिकेट देंगे फ्रॉम दैट बैंक और ट्रांजैक्शन दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन ओनली दैट नेम विल बी रिमूव. ये एक रिकॉर्ड होता है. अदरवाइज आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और आपने पे भी नहीं किया, प्रॉपर्टी आपके पोजीशन पे है, आप किसी और को बेच देंगे, तो यू आर नॉट सपोज टू सेल. तो चीज आपके पास पोजीशन में होती है बट प्रॉपर्टी के राइट्स वो अलग होते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होते हैं. आप लोन पे कोई फ्लैट भी खरीदते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते, आपके पास जेरॉक्स होता है, अनलेस एंड अनटिल आप पूरा अमाउंट पे नहीं कर सकते. ओके, which the civil code recognize as the affording ground for a relief whether such debt beneficial interest to be existence occurring conditional or contingent. Means अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वो कोर्ट जाता है, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेगा, ऑक्शन पे डालेगा बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद अपना अमाउंट डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देगा. So these all are comes under actionable claim. In simple word, actionable claim means a claim of unsecured debt or the claim to any beneficial interest in movable property not in a possession of claimant. Means आप लोन पे जब खरीदते हैं कोई कार तो वो बैंक अपने पास नहीं रख लेती, कार आपको दे देगी, लेकिन अब अगर आपने वो पे नहीं किया तो कहाँ जाएगा वो बैंक. ऐसे कंडीशन में ये चीजें आपकी की जाती हैं और जो भी उसका अमाउंट पर्टिकुलर बाकी है वो आपका आता है अंडर एक्शनेबल क्लेम. ओके, एवरी क्लेम इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. इट मस्ट बी क्लेम आइदर टू अ डेब्ट or to the beneficial interest in a movable property. सारे क्लेम को आप एक्शनेबल क्लेम नहीं बोल सकते. डेब्ट लिया हो, कोई इंटरेस्ट हो मूवेबल प्रॉपर्टी पे, the beneficial interest is not in a movable property itself and may be existence occurring conditional or contingent of the movable property. ये सारा का सारा आपका एक डेब्ट होता है जो आपने उधार लिया हुआ है, लोन पे है, आपसे वो लोन रिकवर करने का पूरा राइट उस इंस्टीट्यूशन के पास है, लीगल राइट. बहुत सारे वो लोग इलीगल वे यूज करते हैं, विल डिस्कस फर्दर, बट लीगल राइट. ऐसे कंडीशन में अगर आप नहीं पे कर रहे हैं उसका लोन, आप इंटरेस्ट प्रॉपर पे नहीं कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में he is liable to go before the certain court of law to claim his amount which is in action. That claim is known as actionable claim. Means suppose आपकी व्हीकल है 20 लाख की, आपने 10 लाख तक पे किया, 10 के बाद आप पे नहीं कर पाते, कोर्ट के पास गया वो बैंक, उसने आपसे वो प्रॉपर्टी ली बाय द लीगल प्रोसेस,
तो याद रखिएगा उस वो लायबल कितने के लिए होगा? सिर्फ 10 लाख के लिए। वो व्हीकल अगर 13 लाख में बिकती है तो 3 लाख आपका है, वो पूरी की पूरी व्हीकल उसकी नहीं हो जाती। इसीलिए कई बार आपकी व्हीकल को वो उठाने आते हैं और कॉमन आदमी को ये लॉ पता नहीं होता, बट दे आर नॉट सपोज टू टच योर व्हीकल बिकॉज एक्शनेबल क्लेम कम है और आप जो मेरी प्रॉपर्टी उठा रहे हैं उसका रेट ज्यादा है। यू आर नॉट इन अ लीगल फुट टू टच माय व्हीकल। ओके, ये पावर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को होता है। टेक द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट और उसके बाद इसके लिए आपको नॉर्मल कोर्ट नहीं होता, इसके लिए आपको होता है DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। लोन रिलेटेड मैटर नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं चलते, नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं चलते, इनके लिए DRT बनाया जाता है, दैट इज नोन एज डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेब्ट का मीनिंग क्या है? द डेब्ट इज एन ऑब्लिगेशन टू पे अ डेफिनेट अमाउंट of sum of money. If the sum of money is not certain, it is not debt. सिंपल सी बात है। आपको कितना मुझसे चाहिए, कितना आपका उधार बाकी है, अगर वही सर्टन नहीं रहा तो डेब्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, और डेब्ट में भी पेएबल इन फ्यूचर है। आज मैं अपना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैं आने वाले सारे इंटरेस्ट अपने ना दे पाऊं। तो हाउ कैन यू एक्वायर माय प्रॉपर्टी on a lapse of 1, 2 or 6 installment? No, it is not legal. It's a conditional contract ना। conditional contract क्या होता है? contract में आपने पढ़ा है कि we are fulfilling some condition on a certain period. It's a future contract. आज अगर मैं फेल हो रहा हूँ, then to on a basis of my today's performance, how will you describe that मैं फ्यूचर में भी नहीं कर पाऊंगा। आज अगर कोई बैट्समैन 0 पे आउट होता है तो आप प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले मैच में भी वो 0 पे आउट होगा। हो सकता है आज उसका लक नहीं था, आज उसका दिन नहीं था। सेम चीज इस मंथ की EMI मेरी लैप्स होती है, तो आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगले मंथ भी मैं लैप्स कर दूंगा? then who will give you right to acquire my property? ओके, ये होता है। तो डेब्ट के लिए सर्टेन अमाउंट होना जरूरी है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ठीक है, डेब्ट इज सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं। ओके, ऐसे में भी वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं ले लेगा, बेचेगा वो पूरी प्रॉपर्टी, बट एक्शनेबल क्लेम का जो अमाउंट है सिर्फ उतना लेगा, बाकी वो आपको रीपे कर देगा। ओके, सो दीज आर द definition of actionable claim. These are the definitions which are covered under the Transfer of Property Act. Last one, last definition, that is a notice. A person is said to have a notice. नोटिस आपको मालूम है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी होती है, एक्सप्रेस भी होती है, इम्प्लाइड भी होती है। सो वी आर स्टॉपिंग टुडे।